Morning students. In previous class we have started a new chapter, that is 13th chapter, reproduction in the plants. And what type of reproduction takes place in the plants? Most of it they undergoes for the asexual reproduction. Mostly they undergoes for the asexual reproduction. और इस कंडीशन में जो मेथड्स हैं that we have discussed, it means the vegetative propagation by the stem we have done, the vegetative reproduction by the leaf we have done in biofilm, the vegetative reproduction in the roots also we have done. इसका मतलब क्या है vegetative reproduction का या propagation का? The reproduction occurs by the using of vegetative parts of the plant. Vegetative parts क्या होता है? Except seed, except flower. Flower और seed के अलावा जो भी parts होते हैं उस organism, उस plant के, that is called the vegetative parts of the plant. और उन parts के द्वारा अगर मान लीजिए कोई भी plant generate हो रहा है, plant grow कर रहा है, it means that comes from the vegetative propagation. Okay. Now one more method, that is also a type of asexual reproduction or vegetative propagation called the reproduction vegetative propagation by the bud. Bud जानते हैं हम लोग. Bud means suppose one leaf is coming from here. It is the leaf. ये कोई leaf है. इस leaf से हम लोग क्या देख रहे हैं? Suppose ये कोई आपकी लीफ है और इस लीफ के ऊपर सपोज कीजिए यहाँ पर एक बड आ गया. बड मतलब एक छोटी सी कली जिसको बोलते हैं अपन, दैट इज द बड. इसको बोलते हैं बल्बिल. क्या बोलते हैं इसको? बल्ब की तरह एक ये गांठ सी बन रही होती है, दैट इज कॉल्ड द बल्बिल. क्या बन गया? ये बल्ब बन गया है. और व्हेनेवर इट ब्रेक्स डाउन फ्रॉम द ओरिजिन, अपने ओरिजिन से ये टूटकर नीचे गिर जाती है, तो क्या करता है ये कि ये नया प्लांट ग्रो कर लेगा. ओके, इट विल ग्रो, इट विल प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट दैट हैव द सेम कैरेक्टर्स एज द पेरेंटल प्लांट. ठीक है, तो ये था आपका क्या? बडिंग. अब सॉरी, बडिंग क्या? बल्ब के द्वारा, ये बड के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन. टुडे वी हैव टू स्टडी A new method of asexual reproduction. ये तो वेजिटेटिव था. इसके अलावा क्या है? इसके अलावा हमारे पास क्या है? बडिंग. ये हम लोगों ने देखना है. बडिंग मीन्स द रिप्रोडक्शन बाय द बड. रिप्रोडक्शन बाय द बड. एंड द एग्जांपल इज yeast. yeast की जो सेल्स है, these are goes for budding. This always goes for budding. और budding की जो प्रोसेस है वो हम लोग किस में देखेंगे? इसमें. What is the budding? In this process, small outgrowths grow on the parental body. It means suppose it is the parental body. ये कोई parental body है. इस parental body के ऊपर क्या हुआ? एक suppose कीजिए ये कोई parental body है. इस parental body के ऊपर क्या हुआ? एक outgrowth आ गया है like this. एक आउटग्रोथ ग्रो कर गया, इट इज लाइक दिस. इन थर्ड स्टेप इसका क्या होगा? बिल्कुल ये इससे अटैच हो जाएगा, बिल्कुल अलग होने के स्टेप पे है. एंड लास्ट वन, इट फॉर्म्स अ न्यू ईस्ट. इट प्रोड्यूसेस अ न्यू ईस्ट. न्यू ईस्ट इसने क्या किया? बना लिया. यहां से इसने नया ईस्ट बना लिया. It is called the bud. Whenever it gets separated from the parental body, it forms a new plant. आई बात समझ में? तो जो yeast है, yeast cell है, that produces a new formed cell. और इसकी जो exact copy है, that is that. Okay. So the process of asexual reproduction in which some outgrowths grows on the parental body, and whenever it gets separated from the parental body, it forms the न्यू प्लांट और न्यू एनिमल. दैट वी कैन से रिप्रोडक्शन किस में हो रहा है उसके बेसिस पे. ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं? फ्रेगमेंटेशन. इसके बाद में क्या हम लोग क्या देखना है? फ्रेगमेंटेशन. इट मीन्स द स्प्लिटिंग ऑफ द प्लांट टिश्यूज इनटू
different parts or each fragment will produce a new plant. Each fragment will produce a new plant. Each fragment will produce a new plant. Okay, budding have done fragmentation. Fragmentation, the example is Spirogyra. Example is Spirogyra. Spirogyra में क्या होता है? Suppose it is the Spirogyra. It is the Spirogyra. In this condition, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है. तो the Spirogyra will splits into different parts. Spirogyra undergoes for asexual reproduction. It gets separated from two in the fragments. यहाँ पर इसका एक फ्रेगमेंट ये हो गया, दूसरा फ्रेगमेंट यहाँ पर हो गया, और सॉरी 1, 2 and 3 फ्रेगमेंट्स इट हैज. इसके अंदर फ्रेगमेंट्स कितने हो गए? फ्रेगमेंटेशन से 3 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया. तो ईच ऑफ द फ्रेगमेंट विल प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट. ईच वन ऑफ द फ्रेगमेंट, इसको बोलते हैं सेप्टम. ये सेप्टम बोलते हैं, इसको हम लोग हार्ट में देखा होगा. इट इज सेप्टम. These septa will give the rise to produce a new plant. ये क्या करते हैं? नया प्लांट ग्रो करने में हेल्प करते हैं. ओके, स्पायरोगायरा क्या होता है? एक एल्गी है. स्पायरोगायरा क्या है? एक एल्गी है. दैट इज द मल्टी सेलुलर एल्गी. इस कंडीशन में क्या होगा? 1 फ्रेगमेंट, 2 फ्रेगमेंट, 3 फ्रेगमेंट. तो यहाँ से नए प्लांट्स कितने बनेंगे? 3. बट इट हैज द सेम कैरेक्टर्स. अब इसमें क्या है? एडवांटेजेस क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या हमको पता है. वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एडवांटेजेस क्या है? द ऑफस्प्रिंग प्लांट ऑब्टेनिंग द आइडेंटिकल टू द पेरेंटल प्लांट. ये ऑफस्प्रिंग जो नया प्लांट आया है, दैट इज हैज द आइडेंटिकल कैरेक्टर्स एज देयर पेरेंट्स. ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड. देयर इज नो नीड फॉर द पॉलिनेशन. पॉलिनेशन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है, बिकॉज इट इज द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच वन पेरेंट इज इन्वॉल्व. इट इज द फास्टर मेथड एज द प्लांट टेक लेस टाइम टू ग्रो. ये फास्टर मेथड है. इस कंडीशन में प्लांट को उगने में कम टाइम लगता है. इट इज एज सिमिलर इन द प्रोडक्शन एज देयर पेरेंट्स. इनका प्रोडक्शन जो हो रहा है दैट इज एज सिमिलर एज देयर पेरेंट्स. पेरेंट्स में जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना ही उसके अंदर होगा. मतलब ऐसा नहीं है कि जो प्लांट वेजिटेटिव प्रोपगेशन से उग रहा है उसके अंदर फ्रूट नहीं आएगा, उसके अंदर फ्लावर नहीं आएगा. ठीक है. तो इट इज द fragmentation, the process in which the parental body is splitting into different fragments and each fragment will produce a new plant or new plantlet. ठीक है. उसके बाद में एक मेथड और आपका एसेक्सुअल का, स्पोर फॉर्मेशन. व्हाट इज स्पोर फॉर्मेशन? इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द फंगस. ये किस में होता है? फंजाई में होता है. मैक्सिममली फंजाई में और ब्रेड मोल्ड में. प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो इट इज ब्रेड मोल्ड. व्हाट हैपेंस इन दिस? अगर हम लोगों ने कभी देखा हो तो जो फंगस आता है, फंगस की जो बॉडी है दैट हैव द नोब लाइक स्ट्रक्चर्स ओवर द सरफेस ऑन द हेड. जो हम लोगों ने क्या देखा है कि उसकी जो नोब लाइक स्ट्रक्चर है दैट हैज द नोब इन विच द स्पोर्स आर प्रेजेंट. उसके अंदर क्या है? उसके स्पोर्स है. और स्पोर्स क्या होंगे? एक तरह से गैमेट्स की तरह बिहेव करेंगे. और whenever the knob, यहाँ पर क्या होगा? जो नोब है इसकी, that is called sporangia. It is sporangia. Whenever it gets destroyed, whenever it gets the break breaks their body, sporangia कभी टूटती है, फटती है, तो spores will come out and whenever they fall on the favorable condition, they will grow a new plant. देखो क्या है? जो हमारे जो फंगस की बात हम लोगों ने करी है ब्रेड मोल्ड की. ब्रेड जो होती है ना, ब्रेड को हम लोग कुछ ऐसे ह्यूमिडिटी वाली कंडीशन में अगर उसको छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर क्या आ जाता है? फफूंद आना स्टार्ट हो जाती है, फंगस डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है. तो उस कंडीशन में अगर मैं उसको एग्जामिन करूंगा तो उसके ऊपर मुझे क्या दिखेगा? ऐसे नोब लाइक स्ट्रक्चर्स ये ऐसे दिखना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. उसके अंदर क्या है? स्पोर्स. और जब वो स्पोर्स
कहीं पर गिरते हैं तो दे विल प्रोड्यूस द न्यू, मतलब वो ब्रेड के ऊपर जो फंगस आ रही है दैट विल इंक्रीज इट्स एरिया, अपना एरिया बढ़ा जाएगी, पहले थोड़े से स्पॉट के ऊपर, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, ऐसे करके वो नया स्पॉट डेवलप कर लेगा। इसका एग्जाम्पल है फर्न। क्या है इसका एग्जाम्पल? फर्न। क्या है एग्जाम्पल? फर्न। ओके, तो इट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा डीपली हम लोग ज़्यादा नहीं देखेंगे, ये मेथड्स हैं जो हमको मुझे समझानी है, आपको समझानी है मुझे। तो इन मेथड्स के अलावा व्हाट हैज़ टू स्टे, व्हाट हैज़ टू डू, वी हैव टू रिमेंबर द बैक पोर्शन ऑफ द 6th क्लास। 6th क्लास में भी हम लोगों ने देखा था फ्लावर के पार्ट कौन कौन से होते हैं और फ्लावर के पार्ट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। आई बात समझ में? वी हैव स्टडीड अबाउट द पॉलिनेशन। क्या पढ़ा हम लोगों ने? पॉलिनेशन पढ़ा भाई, पॉलिनेशन पढ़ा है। तो ये पॉलिनेशन जो है, व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन मीन्स द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। कोई भी प्लांट है उसके फ्लावर के ऊपर क्या डाल रहे हैं हम लोग? उसी प्लांट के क्या डाल रहे हैं हम लोग? पोलन ग्रेन्स उसके स्टिग्मा के ऊपर डाल रहे हैं। बिफोर दिस व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड कि व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। अब देखो हम लोगों ने क्या देखा था? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोगों ने खत्म किया है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। What we have to start? Sexual reproduction means the reproduction in which the sexual part of the plant will involved. ऐसा reproduction in which the sexual part of plant will involved. ऐसा reproduction जिसमें केवल क्या होते हैं? reproductive part ही भाग लेते हैं for the production of a new plant. अब देखिए बात क्या है? What is the reproductive part of the plant? It is the flower. फ्लावर जो है इट इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट एंड इन विच द फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर फाउंड। आ रही बात समझ में? इन विच द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज फाउंड एज वी हैव टू ड्रॉ। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो फर्स्ट वन इज द इंटरनल पार्ट दैट इज कॉल्ड द स्टिग्मा। बड़ा बना देता हूँ। it is stigma. I hope you are able to see। इसके बैक साइड में और आपके लीफ आपको मिल जाएगी, दैट इज पेटल। Okay, now these are anther, this it is stigma, it is style, it is ovary, it is petal, and this one is sepal. It is called sepal. So which part of the flower will involved into the reproduction? The internal part, innermost part, that is called the pistil. इस complete को हम लोग क्या बोलते हैं? Pistil. Complete को क्या बोलेंगे हम लोग? Still.
और इस वाली पोर्शन को क्या है बोलेंगे हम लोग, इस पूरे को क्या बोलेंगे, दिस इज अ फिलामेंट, इट इज अ पोलन बॉडी एंड दिस वन इज नोन एज स्टेमन। इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, स्टेमन। क्या बोल देते हैं इसको, स्टेमन बोल देते हैं। इट मीन्स द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर इज स्टेमन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज पिस्टिल। आ रही है बात समझ में, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज पिस्टिल। इस कंडीशन में these parts, only two parts, that is pistil and stamen will involved into the reproduction। ठीक है, तो ये चीज आपको देखनी है। तो फर्स्ट नाउ वी हैव टू कीप इन माइंड, दोनों को हमको दिमाग में रखना है कि पिस्टिल और स्टेमन क्या करते हैं। तो स्टेमन हैज टू पार्ट्स, फर्स्ट इज स्टेमन हैज टू पार्ट्स, दैट इज it is the female reproductive part, it has the eggs जिनसे सीड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और वन थिंग इज देयर दैट इज pollen body or as we can say stamen। okay, it is the filament and this is the pollen body or anther। ठीक है, इस कंडीशन whenever the anther, there is the pollen body, whenever the pollen body will destroyed or damaged by the wind, by the contact of the animals, by the contact of water, कैसे भी किसी भी कंडीशन में the pollen grains will comes out from the pollen body। इस कंडीशन में जो pollen body है वो डैमेज हुआ तो pollen grains will comes over the surface of stigma, it is called the stigma। स्टिग्मा पे अगर आ रहा है तो द ट्रांसफर ऑफ द pollen grains from the pollen body to the stigma is known as pollination। ये आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, इस कंडीशन में whenever it grows, whenever the growth develops, whenever the reproduction occurs, the pollen body develops a tube। pollen body के अंदर से एक ट्यूब डेवलप होगी, that is called pollen tube, that is called the pollen tube। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, pollen tube। and this pollen will come through this tube and attach to the egg। एक egg के साथ वो attach हो गया है। now it will seems like this, one is egg, one is pollen। दोनों आपस में क्या होंगे, एक सेल से एक जाइगोट बनाएंगे, फर्टिलाइज एग दैट वी हैव स्टडीड। तो ऐसा डाइगोट बन गया, इट इज अ फर्टिलाइज्ड एग, वी कैन से इट विल डेवलप इनटू दिस ओवरी। इस कंडीशन में क्या होगा, इसकी सेल्स क्या होगी, डिवाइड होना स्टार्ट होगी एंड देन दीज पार्ट्स ऑफ द प्लांट विल डैमेज और डिस्ट्रॉय। ये सारे जो पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे एंड द ओवरी विल बिकम्स राइपन, ओवरी विल बिकम्स राइपन। इस कंडीशन में ओवरी क्या होगी, राइप कर जाएगी, पकना स्टार्ट हो जाएगी। इट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ द फ्रूट विल स्टार्ट, प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, फ्रूट का स्टार्ट हो जाएगा। आ रही बात समझ में, फ्रूट का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। आफ्टर दैट इस कंडीशन में द पेटल्स, सॉरी द सेपल्स मे बी अपीयर्स विद द फ्रूट। कभी कभी क्या होता है, फ्रूट के साथ में उसका क्या होता है, जो सेपल वाला पार्ट है दैट विल बी अपीयर। कुछ कभी कभी जैसे मान लीजिए टमाटो में उसका जो ग्रीन वाला पार्ट है टमाटो का, दैट कम्स विद द फ्रूट, फ्रूट के साथ आता है। या फिर मैक्सिमम पार्ट ऑफ द फ्लावर विल डिस्ट्रॉय, खट जाते हैं या झड़ जाते हैं, जो भी हम लोग बोलना चाहें। ठीक है, तो दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड फॉर द रिप्रोडक्शन। ठीक है, अलग अलग एग्जाम्पल्स दे रखा है, अलग अलग पोलिनेशंस होंगे। तो इस कंडीशन में देखो यहाँ पर पोलन बॉडी था, जिससे पोलन्स यहाँ पर गिरे, तो ये एक ही प्लांट का फ्लावर है, उसी फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है उसी पार्ट का क्या है, उसी फ्लावर का क्या है हमारे पास पिस्टिल और स्टेमन है। तो दैट इज द सेल्फ पोलिनेशन। अगर मान लीजिए किसी दूसरे प्लांट के ऊपर फ्लावर है बट यहाँ का पोलन ग्रेन उसकी बॉडी के ऊपर जाकर गिरे तो इट इज
क्रॉस पोलिनेशन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आई बात समझ में? और पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर कैसे हो सकते हैं? whenever the honey bees will collect the nectar, it can stick with the feet legs of the honey bee, उसकी पैरों पे चिपक कर जा सकते हैं वो, या कोई भी कांटेक्ट हो उसके थ्रू क्या होंगे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर वो जा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द पॉलिनेशन। ये चीज हम लोगों ने देख ली है। ओके, मैंने आपको फर्टिलाइजेशन बता दिया, फर्टिलाइजेशन बता दिया आपको। द फर्टिलाइजेशन क्या होता है, प्रोसेस क्या है फर्टिलाइजेशन की? यहां पर क्या है, दीज आर द मेल गैमेट, दीज आर मेल गैमेट एंड दीज आर फीमेल गैमेट। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट इज नोन एज, दोनों जब आपस में मिलेंगे दैट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। When the pollen grains lands on the stigma, it produces the pollen tube, and through this tube the pollen travels to the egg. The pollen travels to the egg and produce the zygote. आ रही बात समझ में? तो ये zygote बनने की जो प्रोसेस है, the process of fusion of the male gametes with the female gamete to form the zygote is called fertilization. Zygote is a single cell. Zygote जो बना है that is a single cell. अब उसको हम लोग बैक साइड में नहीं आएंगे, it is the सिंगल सेल, ये एक ही सेल है। दैट हैज द कैरेक्टर्स ऑफ मेल एंड फीमेल, दोनों के कैरेक्टर्स उसमें कंपाइल करके आए हैं। दैट्स व्हाई इट इज अ सिंगल सेल, दैट इज डिप्लॉइड सेल, जो हम लोग आगे भी पढ़ते रहेंगे। ठीक है, आफ्टर गेट्स न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन गेन करने के साथ क्या होगा, डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द पेटल्स ड्रॉप्स ऑफ, पेटल्स क्या होंगी, गिर जाएंगे। समटाइम्स द सेपल्स टू ड्रॉप ऑफ, समटाइम्स क्या होगा, सेपल्स भी क्या होंगे, गिर जाती है या कभी भी आ भी जाती है। द ओवरी टर्न्स इनटू फ्रूट्स एंड ओव्यूल्स इनटू सीड्स, यहाँ पर जो ओव्यूल्स थे, जो एग्स थे, वो तो किस में कन्वर्ट हो गए, वो तो सीड में कन्वर्ट हुए, और जो ओवरी है दैट कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट। ये क्या है आपका कंप्लीट टॉपिक है, दैट इज द एसेक्सुअल, सॉरी दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, वी हैव टू गो फॉर नेक्स्ट टॉपिक into next class. Okay, it is enough for today. You have to keep in your mind the chapter, you have to read carefully it, and then you can ask to me whatever you don't understand. Okay, thank you, have a nice day.